Alright, so part 1 हो गया, part 2 हो गया. Still the question paper is not over. Part 3 भी है. Yes, there are a lot of questions in part 3 as well. Easy है compared to part 1. Part 2 will be fast. We have already got the logic. कौन से question पे कैसे सोचने का. Remember one thing, the whole idea, the whole motto is to develop a thought process. Question जब approach कर रहे हो तब कौन से directions में सोचना है. Not just one. You have to think in multiple ways. That's the simple ideology. So basically last time हम लोग ने एक limited number of questions देखे थे. We saw till almost 32. Probably this was the last question we did. एक बार वापस यही से start करते. Then later on we'll finish this detection test, which would actually come down to the closure of test paper of organic chemistry uploaded on Pharmalight's website. So yes, just for your information, we have already started with new batch for GPAT 22-23. If you are interested, just contact on this particular number. Also for test series notes, you can reach out. All right, let's get to the topic of today. फटाफट कुछ pending questions है, let's finish them. Color observed at the end of azodite test. जब part 1 part 2 किया था तब अलग अलग डिटेक्शन टेस्ट भी किए थे. We did कार्बाइल अमाइन टेस्ट. कौन सा था वो? ओके या प्राइमरी अमाइन स्पेसिफिकली. फिर हम लोग ने हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट. कौन सा था वो? हाँ, मिथाइल कीटोन. प्रिसाइजली कुछ स्पेसिफिक डिटेक्शन टेस्ट किए थे. We spoke about Lucas test, which was specifically for alcohols. There was one more test which I said is specifically for alcohols. विक्टर मेयर्स टेस्ट. कुछ तो उसका कलर अलग अलग आता है. बोला था चेक करके आना. साथ में डिकिन ऑक्सीडेशन भी लास्ट 2 लेक्चर से बोल रहा हूँ, चेक करके आना. आज पक्का आंसर दे दूंगा कॉस्ट आज लास्ट लेक्चर है फॉर आवर फर्स्ट पेपर व्हाट वी आर डिस्कसिंग. अगेन ऑन सेम ग्राउंड्स देयर आर वेरियस फंक्शनल ग्रुप. एस्टर का कुछ डिटेक्शन टेस्ट होगा, यूरिया का कुछ होगा. One by one, let's tap upon everything. A quick go and let's get an idea about all the compounds. Starting with the first question, color observed at the end of azodite test. Azodite test का जो end product होता है उसका color क्या होगा? That is the question basically. So I've got various options. One option is orange, another is red, another is brown, and last is purple. Last time ये question logically solve किया था. We said that purple color बहुत कम बार देखा है lab में. तो ये तो नहीं है. Brown very rare. Orange and red sometimes we have seen in labs. Now probably few of us are unlucky. Unfortunately हम लोग के लिए practicals lab में हुए नहीं. But yes, those who recollect, we had this in our practicals. So talking over here, I think probably answer is orange. कुछ ऐसा भी बात किया था कि azodite टेस्ट में O है, इसमें O है, आंसर इज ऑरेंज. ऐसा भी कुछ लॉजिक लगाया था. डोंट से सर ब्राउन में भी O है, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये लैब में कभी देखा नहीं है. लेट्स बिगिन. Yes, answer is orange. What was the logic? Nothing specific. Your azodite test will help you to identify aromatic primary amine. क्या ये दूसरे amines भी बता सकता है? क्या ये secondary tertiary amines differentiate कर सकता है? क्या ये सिर्फ aromatic के लिए है कि aliphatic के लिए भी है? So just read the book Benchtop manual once. You will get the idea about all the different functional groups over there. Benchtop manual, biochemistry. Also there is para-nitrosamine test for tertiary amine. अच्छा, रेड कलर कौन से केस में आता है? सो देयर आर मल्टीपल टेस्ट फॉर विच द एंड कलर इज द रेड कलर. गोइंग फर्दर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो ज्यादा आते हैं कोलॉजी मेडिकेम से, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गया. देयर आर सो मेनी ड्रग्स व्हिच हैव द सेम साइड इफेक्ट. सबका साइड इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी. वी हैव ग्रुप देम टुगेदर. टेंशन ना ले, वी आर मेकिंग योर वर्क इजी. Same way, there are multiple detection tests who are all going to give red color at the end. So why don't you group them and study them together? So basically, steric ammonium nitrate, which is for alcohols, again gives you a red color. Your Benedict's test, which is for aliphatic aldehyde, even that gives you a red color. Your sodium nitroprusside test, which we discussed in the previous lecture for ketones, even that gives you a red color. Your Barfoot's test, which is specifically for monosaccharides, even that gives you a red color. All these reactions, all these colors are there in Benchtop manual. My advice, please read this once. This will help you to be ready for all the functional groups. सारे functional groups का color यहीं पे बराबर से हो जाएगा. Going further, brown color भी कहीं पे आता है and actually purple color भी आता है, but we have done it rare in our labs. Going to brown color, Felling's test for aldehydes, and with regards to purple color, when I say purple color is due to action of bleaching powder. Aniline, basically aniline का presence confirm होता है when you get purple color. Even this is a specific test to identify bleaching powder or aniline. It is basically going to give you a purple color, not that great
पहले दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनके टेस्ट के नाम्स भी याद रखना. I'm again repeating what I said in my first two lectures. Not only what is the answer, in which case other three options might have been right, you should have an idea about the same. Once you go on those grounds, things become easy. Going to the next question, Hinsberg test is used to for differentiation between primary, secondary, tertiary, what? Which functional group basically? हिंसबर्ग टेस्ट बात किया था लास्ट लेक्चर में दैट ये बेसिकली कोई अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए भी यूज होता है. जब एजोडाइट टेस्ट की बात कर रहे थे दैट टाइम वी सेड दैट हिंसबर्ग टेस्ट भी कुछ तो डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है. सो व्हाट वाज इट बेसिकली? वाज इट अमाइन्स, वाज इट अल्कीन्स, वाज इट अल्कोहल्स और कीटोन्स? अल्कीन्स तो नहीं होगा, 11 12 में कहीं पढ़ा ही नहीं, तो वो तो नहीं होगा. अल्कोहल्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के लिए देयर इज लुकास टेस्ट, देयर इज विक्टर मेयर्स टेस्ट. तो दो गए, अमाइन बचा, कीटोन बचा. कीटोन के लिए मैं स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट था, मिथाइल कीटोन था, तब आइडोफॉर्म टेस्ट था. अमाइन के बारे में ही मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक पढ़ा था, बट वो था कि प्राइमरी अमाइन के लिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है. ऐसा कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों के डिस्टिंग्विशिंग के लिए अभी तक कुछ भी याद नहीं आ रहा. सो आई अज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एलिमिनेशन, आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन क्लासरूम लेक्चर्स एज वेल, if you don't know what is the correct answer, try and eliminate the options. मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं मालूम था तो मेरे पास 4 ऑप्शन थे, का आंसर नहीं है, ये भी पक्का आंसर नहीं है, ये भी नहीं है. सो दिस इज द आंसर, जस्ट अ लॉजिक बीइंग फ्रेम्ड इन. तो सेम वे लॉजिक फ्रेम करो, आंसर अपने आप मिल जाएगा. लेट्स चेक. ओ, एम आई करेक्ट? यस, अमाइन आ गया. लेट्स ऑब्जर्व. सो बेसिकली इफ यू हैव एनी अननोन अमाइन, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा. In that case, if you want to distinguish, you react it first and foremost with benzene sulfonyl chloride. Don't forget benzene sulfonyl chloride is the reagent when it comes to Hinsberg test. After reacting it with benzene sulfonyl chloride, next thing you do is you react it with a base, NaOH. If you get a clear solution, it's a primary amine. If you get a precipitate which is insoluble in the same NaOH solution, in that case it's a secondary amine. And if after adding benzene sulfonyl chloride, if you are not getting any reaction and on further addition of HCl, if you get a clear solution which is soluble in HCl, HCl कहाँ से आया? आपने HCl यहाँ पे ऐड किया था. पहले केस में जब NaOH ऐड किया मुझे क्लियर सोल्यूशन मिल गया तो प्राइमरी अमाइन है. अगर NaOH ऐड करने के बाद मुझे प्रेसिपिटेट मिला तो वो सेकेंडरी अमाइन है. अगर वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है and then if I am reacting it with HCl, if I get a clear solution, then it's a tertiary amine. Am I correct? ऐसे ही है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी. Still, again I say, go through the Benstock manual. You will get ready on a better note. Let's go to the next question. Victor Mayer's test is used to distinguish between which among the following functional groups? अभी तो चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बोला कि विक्टर मेयर्स टेस्ट बेसिकली अल्कोहल के लिए होता है. अभी बात की थी ना, इट वाज अलोंग विथ लुकास टेस्ट. लुकास टेस्ट भी अल्कोहल के लिए होता है, विक्टर मेयर्स टेस्ट भी अल्कोहल के लिए होता है. जब सेकेंड सेशन हुआ था आई टोल्ड यू दैट विक्टर मेयर्स टेस्ट का पार्ट देख के आना कि प्राइमरी अल्कोहल होता है तो कौन सा कलर आता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो कौन सा कलर आता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है तो कौन सा कलर आता है. Let's get an idea. One thing is for sure, answer is alcohol. Aldehyde ketones, aldehyde was azodide, right? azodide था ना, अभी थोड़े टाइम पहले देखा. ऑल तो हो ही नहीं सकता, कीटोन्स का तो बात ही नहीं आता. ये भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाता. बिकॉज आई नो एल्डिहाइड के लिए azodide है, कीटोन के लिए नाइट्रोप्रोसाइड, मिथाइल कीटोन के लिए हैलोफॉर्म. ऑल तो हो नहीं सकता. सो आंसर वाज गोइंग टू बी अल्कोहल्स इन दिस केस. ऑल राइट, देखते हैं. प्राइमरी अल्कोहल होता है तो क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है तो क्या होता है. डू आई नीड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन? नहीं, मुझे नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए that when it comes to Victor Meyer test, for a primary alcohol there is blood red coloration. If it is a secondary alcohol there is a blue coloration. If it's a tertiary alcohol it is basically colorless. बस इतना ही पता है. I don't care that आयोडीन रिएक्ट होता है तो उसका आई बनता है, आगे सिल्वर नाइट्राइट होता है तो ये बनता है, आगे HNO2 से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, फिर बेस रिएक्ट करेगा तो ब्लड रेड कलर बन. नहीं यार, नो वन इज आस्किंग मी मैकेनिज्म.
I should just know one thing, that at the end, primary alcohol is giving me blood red coloration, secondary alcohol is giving me blue coloration, tertiary alcohol is colorless. बहुत easy है, there is no rocket science involved. Don't make it more confusing for yourself. Don't get into the individual steps. It's not required. Clear enough? Is the order clear? Meg, is the order clear? Good to go? Going further, talking about the next question, fruity smell of ester is used as a confirmatory test for detection of. अच्छा एस्टर बोला ना, फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर है, मतलब वो एस्टर के डिटेक्शन के लिए यूज होगा. सिंपल है ना? एस्टर शुड बी द आंसर, राइट? आधे से ज्यादा लोग ब्लाइंडली एस्टर्स मार्क कर देंगे. आंसर एस्टर है. अच्छा बोथ का ऑप्शन भी है, नन का ऑप्शन भी है. अच्छा एस्टर वर्ड है तो एस्टर की तरफ इंक्लिनेशन तो है, तो नन तो भूल जा. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है तो एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ आएगा. तो अब ये तीनों ऑप्शंस में से कुछ शॉर्टलिस्ट करना है. मोस्ट ऑफ द पीपल विल बेसिकली गो रॉन्ग and they'll blindly mark esters over here, but the answer over here is carboxylic acid. Kaise? Why carboxylic acid is the answer? Basically, the reason why carboxylic acid is the answer, this is your carboxylic acid, RC double bond O OH. This is your alcohol, ROH. What happens next is, यहां से OH, यहां का H लेके, it moves out at water. H2 बन के बाहर चला जाता है वो. On other grounds, your RC double bond O combines with OR. यहाँ का RC double bond O यहाँ के OR के साथ combine होता है and it makes a ester. अभी समझा fruity smell of ester क्यों? Because carboxylic acid on reaction with the alcohol basically forms an ester. And ये जो स्मेल है that is of this ester. That is why it is used for detection of carboxylic acid. आप बोलोगे सर ये ester के लिए क्यों नहीं होता है? Because when you will react a ester, you won't get product as an ester ना. End में product ester ही नहीं रहेगा तो smell of ester possible कहाँ से? Getting the logic? ये बहुत common question है where people go wrong. So just don't always go with the flow. ये ester है तो आंसर भी ester होगा. No. कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है उसका प्रोडक्ट एक एस्टर है व्हिच इज लीडिंग टू द फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर एंड दैट्स द रीजन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द आंसर. आई होप थिंग्स आर क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. कानिजारो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर, बहुत बार डिस्कस हो गया यार, है ना? कानिजारो रिएक्शन का प्रीरिक्विजिट क्या है? अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी देयर, है ना? अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी देयर. अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए तो ही कानिजारो रिएक्शन पॉसिबल है. इधर वर्ड क्या है? नॉट पॉसिबल फॉर. बी केयरफुल. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ही कानिजारो रिएक्शन होगा. अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए कानिजारो रिएक्शन नॉट पॉसिबल. करेक्ट? सीआर लिख रहा हूं. कानिजारो रिएक्शन नॉट पॉसिबल इफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. तो Cannizzaro reaction is not possible for is the question. तो अगर Cannizzaro reaction not possible मतलब वो रिएक्टेंट में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. अगर वो स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके लिए Cannizzaro नहीं हो सकता. सिंपल. टेंशन मत ले, कुछ टूटा फूटा नहीं है, जस्ट सम बैकग्राउंड नॉइज. तो अगर Cannizzaro रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बेसिकली उसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस. बेंजाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, both and none. None तो छोड़ दे. Cannizzaro reaction happens for aldehyde only. Let's structure of benzaldehyde and acetaldehyde. This is the structure of benzaldehyde. Benzene पे C double bond OH. ठीक है. Going to the structure of acetaldehyde. CH3 C double bond OH. Forget this, huh? Don't take this into account. So this is the functional group. This is the functional group. ये functional group के बाजू वाला कार्बन, ये functional group के बाजू वाला कार्बन. अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन. बेंजीन के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए Cannizzaro रिएक्शन पॉसिबल है. सो बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी द आंसर. क्वेश्चन क्या है? नॉट पॉसिबल फॉर. इसके लिए नहीं हो सकता. ऑन अदर ग्राउंड्स इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है.
अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होता है, आप नहीं बोला ना, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं। एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट्स वेरी सिंपल, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इजी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्मार्टली एक एक वर्ड पढ़ना। इफ यू माइट हैव मिस्ड द वर्ड नॉट ओवर हियर, आधे से ज्यादा लोग आंसर बेंजाल्डिहाइड मार्क कर देते थे, सो डोंट गो रॉन्ग ओवर हियर। छोटी चीजें है, दे आर इजी, दे आर वर्थ स्कोरिंग। I've just drawn the same thing, so nothing to worry. Going to the next, product of Kolbe-Smith reaction when reacted with acetic anhydride gives product which has following properties. Oh, question देगा, कोल्बे स्मिथ का जो प्रोडक्ट आता है, कोल्बे स्मिथ का प्रोडक्ट पहले क्या आता है, दैट इज आवर क्वेश्चन। कोल्बे स्मिथ का प्रोडक्ट बेसिकली सैलिसिलिक एसिड आता है, ओके वो सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। लेट्स चेक। so this is answer is all very obvious. This is our Kolbe-Smith reaction, प्रोडक्ट आया सैलिसिलिक एसिड, अब इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है, यही बोला था ना, प्रोडक्ट ऑफ Kolbe-Smith reaction when reacted with acetic anhydride. Now I'm reacting it with acetic anhydride, ये रहा acetic anhydride, what I get in product is basically O-acetyl salicylic acid, which is nothing but aspirin, and we discussed during the lecture, aspirin is analgesic, yes, aspirin is also antipyretic, aspirin is also anticoagulant, तीनों action है at different doses, so the answer is all of the above. Easy. उसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन था, उसका प्रोडक्ट क्या है वो नहीं पूछा था, जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज क्या थे, अंडरस्टैंड, फ्लो है पूरा। गोइंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, HVZ रिएक्शन इन्वॉल्व्स व्हिच रिएजेंट। सबसे पहला पंगा, आधे से ज्यादा लोगों को HVZ कौन सा रिएक्शन बोल रहा है वो ही नहीं मालूम, तो बेसिकली इट्स ऑफिशियल शॉर्टकट, मेरा बनाया हुआ नहीं है। HVZ रिएक्शन इज बेसिकली हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की। तो अगर मैं हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन की बात करता हूँ, अगेन तेरा मेरा 12th स्टैंडर्ड, तेरा मेरा सेमेस्टर 4 बी फार्म, सो व्हेन इट कम्स टू आवर हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, क्वेश्चन इज उसमें कौन सा रिएजेंट इन्वॉल्व होता है, तो बेसिकली इट इज रेड फॉस्फोरस। ब्लू फॉस्फोरस ऐसा कुछ सुना नहीं है, वो तो नन तो उधर ही चला गया। रिएक्शन क्या था, उसका रिएक्टेंट क्या होता था, उसमें रेड फॉस्फोरस क्या करता था, कुछ याद है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की में क्या होता था, कुछ उसमें अल्फा हैलोजिनेशन होता था क्या, क्या उसमें ब्रोमीन अटैच होता था, क्या वो ब्रोमीन अल्फा कार्बन पे अटैच होता था, ऐसा कुछ था। लेट्स ऑब्जर्व। So basically whatever was happening, it was in the presence of red phosphorus. Your general reaction in this particular case, when it comes to red phosphorus, your reaction goes this way. First of all, इसका reactant was a carboxylic acid, CH3CH2COH. ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन पे रिएक्शन के टाइम पे रेड फॉस्फोरस and you had your bromination का Br2. What was happening in as a product was you had CH3 CH अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन आ जाता था, सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन पे होता था, and you had your COOH. बेसिकली ये Br2 है, कैन आई राइट दिस Br2 एज ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, यहां से एक ब्रोमीन यहां से एक हाइड्रोजन लेके HBr बन के चला जाता था, दैट वाज योर बाई प्रोडक्ट। डी पार्ट में कोई तुझे मुझे बाई प्रोडक्ट नहीं पूछने वाला। On other grounds, other bromine used to occupy this position. That's how you got substitution at alpha position, alpha bromine. I hope it's clear. I hope it's easy. Clear enough? Is the audio breaking? Is the audio breaking? I hope it's clear. Let's go to the next. Wolff-Kishner reaction uses hydrazine to give dash as a product. First and foremost thing, hydrazine क्या होता है, सवाल ये, hydrazine is nothing but something like NH2, correct? Hydrazine is nothing but something like NH2 along with NH2. Product क्या है, that is the question. मुझे जितना Wolff-Kishner reduction याद आ रहा है, I've heard it never in alkenes. Alkenes के लिए तो पीटरसन रिएक्शन था, शापिरो था, विटिक था,
तीन ही रिएक्शन थे अल्कीन्स के लिए, विटिक, शापिरो, पीटरसन। तो अल्कीन्स तो नहीं है, अगर अल्कीन्स नहीं है तो ऑल भी नहीं है, अब बचा अल्केन्स और अल्काइंस। आई रिमेंबर वन थिंग, वॉल्फ किश्नर, स्पेलिंग एरर है, आर भूल जाओ, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में हमेशा प्रोडक्ट में सी डबल बॉन्ड ओ CH2 में कन्वर्ट होता था। अगर प्रोडक्ट में CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, कैन आई से CH2 है तो इट हैज टू बी अल्केन। आई थिंक आंसर शुड बी एन अल्केन। लेट्स चेक, वी डोंट नीड टाइमर सर, stop it. Basically, when it comes to Wolff-Kishner reduction, your hydrazine, which is NH2, it reacts with a keto compound C double bond O. जब ये रिएक्शन होता है, ज्यादा कुछ नहीं, when it comes to your product, it gets converted into CH2. यहाँ से एक दोनों हाइड्रोजन ये कार्बन के साथ स्टिक हो जाते थे, ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को लेके -H2O बन के चले जाते हैं। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, दोनों चले गए। सर यहाँ का नाइट्रोजन बचा है, यहाँ का नाइट्रोजन बचा है, वो दोनों N2 गैस बन के इवॉल्व होके चले जाते। दैट्स हाउ योर रिएक्शन प्रोसीड्स। aldehyde or ketone getting converted to a alkane. This is your alkane, this is your N2 gas getting evolved. Same thing जो मैंने नीचे लिखी है वही है, nothing different. You can capture it, you can anytime come back to the video and go through it. Video कहीं नहीं जा रहा है, feel free. I hope everything is clear till here. Next question in Hoffman rearrangement. Wow, बहुत अच्छा question. अब ये ऐसा केस है जहां पे मुझे सब कुछ पता होना चाहिए कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट में होता क्या है। So let's start the timer. नाइट्रीन इज एन इंटरमीडिएट, आइसोसाइनेट होता था, नाइट्रीन भी होता था, तो ठीक है, नाइट्रीन इज एन इंटरमीडिएट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियोफिलिक अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस। अल्काइल ग्रुप आगे पीछे होते थे क्या, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को स्टेटमेंट। न्यूक्लियोफिलिक नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट न्यूक्लियोफिलिक बोल रहा है और रीअरेंजमेंट बोल रहा है। रीअरेंजमेंट तो होता था, बट वो न्यूक्लियोफिलिक था कि इलेक्ट्रोफिलिक मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ दे। नाइट्रीन है, नाइट्रोजन है, तो शायद न्यूक्लियोफिलिक होता होगा, शायद, जस्ट अ लॉजिक। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पक्का करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट डाउटफुल। लेट्स गो टू द थर्ड स्टेटमेंट। प्रोडक्ट हैव वन कार्बन लेस कंपेयर्ड टू स्टार्टिंग मटेरियल। यस, आपने बोला था फर्स्ट लेक्चर में, हॉफमैन, कर्टियस, बोल बोल, लॉसन, स्मिथ, ये चारों रिएक्शन में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है, आपने बताया था। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, सेकंड के बारे में सोचना ही क्यों, ये दोनों करेक्ट है तो ऑल आर ट्रू ही मार्क करना पड़ेगा। आंसर शुड बी दिस। लेट्स चेक। ओ नहीं आया, आइसोसाइनेट वाज द इंटरमीडिएट, नाइट्रीन नहीं था, आइसोसाइनेट था। इज इट द केस? न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। लेट्स चेक द रीअरेंजमेंट स्टेप। Rearrangement step is basically this. You have your carbonyl group, you have your nitrogen group. कहीं पे भी alkyl group का rearrangement हुआ? Yes, alkyl group went to the nitrogen. So yes, answer is not this. Answer is all are true only. मैंने second जो reaction था, second part था वीडियो का, उसमें भी एक mistake था, इसमें भी एक mistake है, फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में भी एक मिस्टेक था। याद है डेकिन ऑक्सीडेशन? अब डेकिन ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो उसको खत्म कर ही लेते। वहां पे डेकिन ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो रिएक्टेंट लिया था इट वाज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, करेक्ट, ये वाला रिएक्टेंट लिया था। बेसिकली इफ यू रिमेंबर, दिस इज नथिंग बट सैलिसिलएल्डिहाइड। दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ व्हिच नेम रिएक्शन? परफेक्ट, इट वाज प्रोडक्ट ऑफ योर रीमर-टीमर रिएक्शन। सो रीमर-टीमर रिएक्शन में एक ऑर्थो प्रोडक्ट होता था, एक मेजर प्रोडक्ट जो होता था। ऑर्थो वाज द मेजर प्रोडक्ट, आई होप यू रिमेंबर। पैरा प्रोडक्ट वाज योर माइनर प्रोडक्ट। ये पैरा प्रोडक्ट का जब डेकिन ऑक्सीडेशन होता है, आई होप यू रिमेंबर, डेकिन ऑक्सीडेशन वाज H2O2 स्पेसिफिकली, H2O2। जब डेकिन ऑक्सीडेशन होता था, जब वो H2O2 के साथ रिएक्ट करता था, प्रोडक्ट वहां पे दिखाया था कि ये CHO हो जाता है। नो, आई टोल्ड यू दैट वाज रॉन्ग, पहले ही बताया था लेक्चर के टाइम पे। एक्चुअल प्रोडक्ट इज यू गेट 1,4 डायोल। It looks something like this. This is the product for your Dakin oxidation. DAKIN oxidation. Dakin oxidation. Part 1 video description में है, Part 2 video भी description में। If you have missed those two parts, you can go through it anytime.
क्लियर टिल हियर? डेकिन ऑक्सीडेशन की भी बात हो गई, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑल आर ट्रू है, ठीक है, डोंट वरी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. द माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम वन कार्बन, sorry, the migration of a group from carbon to electron deficient oxygen is an example of which reaction? Okay, first and foremost thing, ट्रांसफर क्या होने वाला है? सो इट्स गोइंग टू बी सम ग्रुप. वो ग्रुप किस पे से ट्रांसफर होगा? कार्बन पे से, मतलब कार्बन को कुछ तो अटैच ट्रांसफर होने वाला है टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन. तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रहने ही वाला है. ये सारे रिएक्शन में ऑक्सीजन होता है क्या, पहले वो देखते हैं. बेयर विनेगर का प्रोडक्ट, यस एस्टर था, उधर ऑक्सीजन था. पिनाकोल, पिनाकोलन में कीटोन बनता है एंड में, तो उधर भी ऑक्सीजन है. बेकमैन रीअरेंजमेंट, हाइड्रोक्सिल अमाइन कुछ तो होता है उसमें, तो उधर भी ऑक्सीजन है. बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट आई डोंट रिकलेक्ट था कि नहीं. अब ये चारों में सोचना है. एक चीज याद आ रहा है मेरे को, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, वो ट्रांसफर वाला, वो मैंने हमेशा सिर्फ ये दो रिएक्शन में पढ़ा था. करेक्ट? पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट में ATPCN. आई होप यू रिमेंबर आवर शॉर्ट फॉर्म. Am I right, students? On other ground, बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट में भी कुछ तो था, हाइड्रोजन अराइल अल्काइल, पिनाकोलन पिलाकोलन में था. तो आंसर मुझे स्ट्रांगली ये दोनों के बीच में लग रहा है. अब बोल क्या रहा है वो, माइग्रेशन एक कार्बन से होने वाला है टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन. मतलब एक ऑक्सीजन होगा विच इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने वाले. मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन तो पिनाकोलन में था. मुझे आंसर बी लग रहा है. आई माइट बी रॉन्ग, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ. एज अ स्टूडेंट आई एम जस्ट थिंकिंग ऑन इट एंड आई एम थिंकिंग वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. लेट्स चेक. ओ, आई वाज रॉन्ग. आंसर बेयर विनेगर है. हाउ? ऑब्जर्व नाउ, व्हाट वाज द क्वेश्चन सेइंग? पिनाकोलन पिलाकोलन में कीटोन था. क्वेश्चन क्या बोल रहा था? माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन. तो कार्बन के ऊपर से कुछ माइग्रेट होना है टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन. So this is actually your entire mechanism, how it works when it comes to your beer vinegar reaction. What is the entire part? This is a carboxylic acid. This is a ketone. Correct? If you remember, when it was your beer vinegar reaction, beer vinegar reaction में, this is not a carboxylic acid. Beer vinegar reaction में जो reagent था, that was actually peroxy acid. अरे मैंने 3 ऑक्सीजन गलत लिखे क्या? नहीं 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 नहीं, बेयर विनेगर में 3 ऑक्सीजन ही होते. ट्राइफ्लोरो पर ऑक्सी एसिड, 3 ऑक्सीजन होते हैं. 3 ऑक्सीजन होते हैं. ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन. So if you get into the mechanistic of it, you will get the answer that why this is the answer. तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स you will get in the book सन्याल. तो कहीं कहीं पे वो पैराग्राफ्स रीड करना जरूरी बन जाते. मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट गो थ्रू द रिएक्शन, वी डोंट गो इन डेप्थ. अब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने पिनाकोल पिनाकोलन क्यों मार्क किया. इफ यू रिमेंबर पिनाकोल पिनाकोलन मैकेनिज्म, उसमें कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में, कार्बोनिल ग्रुप पहले दोनों अल्कोहल होते हैं, COH COH, एंड देन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, O- बनता है. तो मैं वो सोच रहा था, बट मैं भूल गया वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं था. उस पे हमेशा O- होता था. करेक्ट? वही तो आगे इलेक्ट्रॉन देता था. वॉज इट एवर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? नो. सो आई वॉज राउंड अबाउट क्लोज टू द आंसर, बट आई मिस्ड इट. नेक्स्ट टाइम थोड़ा और सोचूंगा. लेट्स प्रोसीड. विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स माइग्रेशन फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन. कार्बन से नाइट्रोजन पे जाना है. अगेन टफ. चल, नाइट्रोजन बेयर विनेगर में तो नहीं है. हॉफमैन में नाइट्रोजन एसिटामाइड में था. बेकमैन में नाइट्रोजन था, हाइड्रोक्सिलामाइन में. बेंजिलिक एसिड में भी नहीं था. हॉफमैन बचा और बेकमैन रीअरेंजमेंट बचा. माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन. कार्बन से नाइट्रोजन पे, हाँ, आइसोसाइनेट बनता था, तो हॉफमैन हो सकता है. बेकमैन नहीं लग रहा है. आई विल गो विद हॉफमैन. लेट्स सी. अरे जिसको एलिमिनेट किया वही आंसर था. बेंजिलिक एसिड, वी हैव नॉट डन इट इन क्लास. नेक्स्ट लेक्चर बाय द टाइम वी गेट इन. लेट्स सी. बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल भी एक बेंजील ग्रुप होगा. बेंजील ग्रुप इज नथिंग बट बेंजीन, C double bond O, C double bond O, again a benzene. So other way to write same benzyl is, you can simply write C6H5, C double bond O, C double bond O, C6H5. सेम चीज लिखा है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है. बेंजीन
C6H5, C double bond O, C double bond O, again C double bond O, again C6H5, again C6H5. When you add hydroxyl group, what all things will take place? How the phenyl group will transfer? Migration of a group from carbon to nitrogen. इसमें nitrogen तो है ही नहीं. Again, here the given answer is not supposed to be benzylic. The correct answer is Beckmann. No, the correct answer is Hoffman rearrangement only. Given answer is wrong. Second mistake in this one. Be careful, straight away flow में मत जाना. I know थोड़ा confuse होगा, but ऐसी चीजें ज्यादा better way में याद रहती है. You can remember them strongly. अरे इसके पूरे इसमें नाइट्रोजन ही नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में लॉजिक बताया. बेंजिलिक एसिड में नाइट्रोजन ही नहीं था. कार्बन टू नाइट्रोजन कैसे हो सकता है? The reason to do such errors is you don't rely what comes in and you trigger your brain. So don't accept whatever is coming up. Let's go to the next. Which reaction involves acyl nitrene and isocyanate as intermediate? अभी तो गलत नहीं जाएगा. अभी तो गलत नहीं जाएगा. ये दोनों एक ही जगह पे साथ में थे. बेयर विनेगर नहीं, उधर तो एस्टर बनता है, परऑक्सी एसिड होता है. बेकमैन में असाइल नाइट्रीन आइसोसाइनेट पॉसिबल नहीं है. पिनागोल रीअरेंजमेंट में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है. तो आंसर इज हॉफमैन ओनली. सबसे इजी क्वेश्चन लगा मेरे को अभी तक. अभी तक के बाकी सारे क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहे थे, बट इफ यू रिमेंबर मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया था उसका पूरा मैकेनिज्म इन केस ऑफ हॉफमैन. हियर इज योर असाइल नाइट्रीन, हियर इज योर आइसोसाइनेट, हियर इज योर इंटरमीडिएट. इजी. Let's go to the next. Which one is not found in Perkin reaction? कौन सी ऐसी चीज है जो Perkin reaction में नहीं मिलती है? एक चीज तो श्योर है कि सिनामाल्डिहाइड से सिनामिक एसिड बनता है उसका प्रोडक्ट. आई होप यू रिमेम्बर. उसका प्रोडक्ट सिनामिक एसिड होता है जो सिनामाल्डिहाइड से बनता है. नॉट फाउंड, नहीं मिलता है. ठीक है, सिनामाल्डिहाइड मिलता है, नॉट फाउंड. बेंजाल्डिहाइड मिलता होगा क्या? सिनामाल्डिहाइड मिल रहा है तो बेंजाल्डिहाइड मिलता होगा क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता होगा क्या? अगर मैं एक चीज देखूं, ये तीनों एरोमेटिक सिस्टम है, सिर्फ ये एलिफेटिक सिस्टम है एसिटिक. एंड ओके, नॉट फाउंड बोल रहा है, वो ऐसे नहीं बोल रहा है नॉट फॉर्म्ड. ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली. इट इज सेइंग नॉट फाउंड, नॉट फॉर्म्ड नहीं बोल रहा है. वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि इसमें से कौन सी चीज प्रोडक्ट में नहीं मिलती है. प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है नॉट फाउंड. तो इफ आई रिकलेक्ट, पर्किन रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड इज वन ऑफ द रिएक्टेंट. यस, एसिटिक एनहाइड्राइड इज द रिएक्टेंट. सिनामाल्डिहाइड ऑन अदर ग्राउंड्स इज द प्रोडक्ट. तो ये दोनों तो आंसर है नहीं, ये दोनों मिलता है उसमें. अब बचा बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजीन. स्ट्रेंज. बेंजाल्डिहाइड, शायद बेंजाल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड ही रिएक्ट करते, तब भी तो शायद मुझे सिनामाल्डिहाइड मिलता है. तो शायद से आंसर बेंजीन है. अग्री? ये भी गलत हो सकता है क्या सर? दो क्वेश्चन गलत. नहीं, ये राइट. बेंजीन इज द आंसर. हाउ कम? So aromatic aldehyde, your aliphatic acid anhydride, these all things are actually a part of your reactant. Most importantly, at least 2 alpha hydrogen. If you remember, this point was right there in our slide when we were discussing Perkin reaction. When you take acetic anhydride, उसके पास 2 alpha hydrogen होते हैं. That's the difference. I hope you remember. Let's go further. Next. Okay, RX. Oh, wow. Alkyl halide and product is supposed to be alkyl isocyanate. कुछ तो याद आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमेशा प्रॉब्लम करता था. आई गेस इट वाज समथिंग विद सिल्वर. सिल्वर हमेशा त्रास देता था. अगर सिल्वर साइनाइड होता है तो प्रोडक्ट शायद आइसोसाइनेट होता है. बट अगर पोटेशियम साइनाइड हो, अगर सोडियम साइनाइड हो, इन दैट केस माय प्रोडक्ट ऑलवेज यूज्ड टू बी अल्काइल साइनाइड. तो अगर पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड होता था तो प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड होता था. बट ऑन अदर ग्राउंड्स अगर सिल्वर साइनाइड होता था तो प्रोडक्ट हमेशा आइसोसाइनेट होता था. याद आ रहा है? हमने लेक्चर में डिस्कस किया था ये पॉइंट. एनीवेज, लेट्स चेक ऑप्शन में ऐसा कुछ है भी क्या. वो सिल्वर साइनाइड चाहिए, ये रहा, मिल गया. यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है. पास हो गया, पास हो गया. All right, this was what I was just now talking about. Same cheese hai. So you have alkyl halide reacting with potassium cyanide. You get product as alkyl cyanide. You have your alkyl halide reacting with potassium nitrite. You have alkyl nitrite. Expected चीज आ रही है. पोटेशियम चले जाता है हाइड्रोजन के साथ, अल्काइल ग्रुप चले जाता है. सॉरी, दिस इज सपोज टू बी KX. पोटेशियम चले जाता है यहाँ पे विथ हालाइड, आ गया यहाँ पे भी. और R और CN साथ में आ जाते हैं. R और ऑक्सीजन साथ में आ जाते हैं. बट व्हेन इट वाज सिल्वर साइनाइड,
जब वो AgCN होता था अल्कोहलिक वाला, तब प्रॉब्लम आ जाती थी। Ag तो चले जाता था X के साथ, सिल्वर हलाइड बन के वो तो प्रेसिपिटेट हो जाता था, सिल्वर हलाइड बन के वो तो प्रेसिपिटेट हो जाता था, बट प्रॉब्लम वाज अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के पास नहीं, वो नाइट्रोजन के पास जाता है। अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के पास नहीं, यहाँ पे कार्बन के पास नहीं, नाइट्रोजन के पास जाता है। दैट्स व्हाई यू गेट आइसोसाइनेट। इज इट क्लियर व्हाई दिस इज द आंसर? एक्सेप्शन है, याद रखना, डोंट गो रॉन्ग ऑन दिस। वाओ, माय फेवरेट क्वेश्चन। पता है ये क्या है? देखा है इसको? कभी देखा है? बेसिकली दिस इज अ कीटोन एंड एरो पे हाइड्रोजीन लिखा है। कीटोन एंड हाइड्रोजीन, जब भी मैं हाइड्रोजीन देखता हूँ, हाइड्रोजन इज समथिंग लाइक दिस, NH2 मेरे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने हाइड्रोजीन को सिर्फ वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन में देखा है। तो दिस शुड बी वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन, और वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन का प्रोडक्ट बेसिकली एक अल्केन होता है CH2, राइट? हमने देखा था। तो बेसिकली ये C डबल बॉन्ड O के बदले CH2 होना चाहिए। नाइट्रोजन कहां से आया? ओह, इज इट एन इंटरमीडिएट? नहीं, हाइड्रोजन के आगे बेस भी लिखा है ना, मतलब वॉल्फ-फिश्नर रिडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों स्टेप्स है। पहले हाइड्रोजन, फिर बेस में या तो KOH होता था या तो NaOH होता था, तो वो भी है। तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट ही लिखना है, मुझे कोई इंटरमीडिएट नहीं लिखना है। दिस इज अ इंटरमीडिएट, दिस इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, दिस इज ऑल्सो गॉट नो रिलेवेंस। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। देखना, C डबल बॉन्ड O के बदले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब दो हाइड्रोजन है, CH2 में कन्वर्ट हो गया है। आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ द स्टेप्स। ओ वाओ, एम आई राइट? यस, आई एम राइट। Wolff-Kishner reduction, C double bond O getting converted into CH2, both the hydrogens. Easy, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिखा होता तो प्रोडक्ट अलग होता, सिर्फ एक स्टेप करना था। Might have been this intermediate. Be smart, check all the reagents given. Clemmensen reduction is described as, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट बहुत प्रॉब्लम है। मैं काम करता हूँ, सबसे छोटे वाले स्टेटमेंट से रीड करना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेटमेंट सेज दैट oxidation of amine to amide using hydrogen peroxide. क्लेमेंसन रिडक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहां से आया? वो तो डेकिन ऑक्सीडेशन में था ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो पहला स्टेटमेंट तो मैं भी ये क्वेश्चन पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मैंने देखे भी नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स और अल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वापस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लेमेंसन में H2O2 कहां से आया? चल हट। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्डिहाइड्स यूजिंग जिंक अमलगम। ओ तेरी, अभी तो ऐसा लग रहा है शायद H2O2 भी था क्या? क्लेमेंसन है यार, क्लेमेंसन। ओ तेरी, जिंक अमलगम बोला मतलब ZnHg, एंड हाइड्रोक्लोराइड बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ZnHg HCl। मुझे इतना याद है कि क्लेमेंसन रिडक्शन हो या फिर वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन हो, क्लेमेंसन रिडक्शन या वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली एक अल्केन ही होता था। तो मुझे सिर्फ यही चेक करना है कि कन्वर्जन के बाद प्रोडक्ट में अल्केन कौन से स्टेटमेंट में, इधर अल्केन है नहीं है, इधर तो अमाइड था, इधर अल्केन है नहीं है, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड था, इधर अल्डिहाइड है ये भी नहीं है, सिर्फ यही स्टेटमेंट में अल्केन है। मुझे अगर सिर्फ इतना भी याद होता कि क्लेमेंसन रिडक्शन में अल्केन बनता है, मैं स्ट्रेट अवे आंसर मार्क कर देता था। देयर इज नथिंग मच टू थिंक। बी स्मार्ट, इधर ही गेम है बिटवीन योर रैंक्स, between the amount of time you take on a particular question. Smartly सोचेगा ना बॉस, every answer is there itself. Perfect. Yes, ZnHgHCl, ketone group, C double bond O getting converted to CH2. Let's go further. चल मेरे भाई, बेसिकली एक चीज हमेशा याद रखना, ZnHg के साथ HCl भी चाहिए। HCl is going to give a acidic environment. Instead of HCl, at times they might write H plus. Okay, makes sense. Be careful with both the reagents. जैसे हाइड्रोजीन देखा था अभी बेस के साथ लिखा था, सेम वे। लेट्स गो फर्दर। कार्बोक्सिलिक एसिड, यस इट इज RCH2COOH। R, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे कार्बन है, so it's basically a carboxylic acid. Let's check what happens further. Okay, so ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन हो रहा है, H2I2 Br2, कहीं पे भी एरो पे रेड फॉस्फोरस नहीं है,
बट मैंने जितने भी नेम रिएक्शन किए हैं उसमें से एक ही नेम रिएक्शन ऐसा था जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेंट था along with different halogens, right? Your Hell-Vollard-Zelinsky reaction, HVZ was the only reaction where you had carboxylic acid as a reactant which was reacting with different halogens. उसमें होता क्या था, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे हैलोजिनेशन होता था. तो दिस इज माय अल्फा कार्बन, मेरे अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे हैलोजिनेशन. सब जगह पे अल्फा कार्बन पे ही हो रहा है, राइट? यहाँ पे भी अल्फा कार्बन पे जा रहा है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन पे जा रहा है. बट इफ यू रिमेंबर दैट वाज रेड फॉस्फोरस विद Br2. So the answer is this option, which is B. Answer is option B. So be careful during GPAT as well. B इधर है कि उधर है वो ध्यान रखना. Perfect. This was Hell-Vollard-Zelinsky reaction. Let's go further. CH3Br plus C2H5Br. So can I say this is Rx plus Rx? Correct? Reacting in presence of sodium and dry ether. Can I say it is nothing but Wurtz reaction? और मुझे इतना पता है कि Wurtz reaction का प्रोडक्ट एक अल्केन होता है. वो ऐसा अल्केन होता है जिसमें दोनों R ग्रुप्स को साथ में लिख देना है. So I have C2H5, I have CH3. I'm supposed to write both of them together. C2H5 CH3 is nothing but C3H8, which I can say as propane. अब इस ऑप्शन में प्रोपेन है क्या? Let's check. प्रोपेन है ऑप्शन में, बट ऑप्शन में इथेन भी है, ब्यूटेन भी है. हो सकता है कि यही दोनों आर ग्रुप दोनों बार मिथाइल ही कंबाइन हो जाए. तो दोनों बार अगर मिथाइल कंबाइन हो गया तो करेक्ट है, प्रोपेन भी करेक्ट है. हो सकता है दोनों बार इथाइल ग्रुप ही कंबाइन हो जाए, C2H5 C2H5. सो अगर दो बार C2H5 C2H5 कंबाइन होता है, इट बिकम्स C4H10, मतलब ब्यूटेन भी करेक्ट है. प्रोबेबली आंसर इज ऑल. लेट्स चेक. आई होप यू गॉट द लॉजिक. मैंने कैसे रिलेट किया उसको, आई होप दैट मच पार्ट इज वेरी मच क्लियर. यस, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. वर्ड्स रिएक्शन है, just for your information, methyl methyl, methyl ethyl and ethyl ethyl, same thing. We had discussed this question during lecture as well. I hope you recollect. Going further, which is true for migratory aptitude as per Pinacol-Pinacolan reaction? So if you remember Pinacol-Pinacolan rearrangement, recently we did it in lecture. ये भी था, I said in just when we started the initial part. एंड साथ में ये भी था एनिसाइल टोलाइल फिनाइल क्लोरोफिनाइल. इसके आगे क्या था, कुछ था ना, ATPCN वाज आवर कोड वर्ड, राइट? नाइट्रोफिनाइल. आंसर शुड बी बोथ ए एंड बी. ये दोनों ऑप्शंस तो एक दूसरे को ऑपोजिट है, राइट? एरोस देख चेंज हो गए, तो आंसर शुड बी बोथ ए एंड बी. लेट्स चेक. अरे वाओ, आता है रे. द इंटरमीडिएट इन सेंडमियर रिएक्शन, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन. दोनों में फर्क सिर्फ अल्काइल और अराइल का है. डन फ्रीक्वेंटली इन आवर 12th स्टैंडर्ड. आंसर इज अराइल डाइजोनियम सॉल्ट. इसमें कुछ नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ना, आई होप यू रिमेंबर. इसमें कुछ तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, राइट? NaNO2 plus H2SO4. Don't forget the temperature conditions. As such, you don't need to know the exact reaction. We will be covering this in detail again in our further lectures. Going to the next question, which talks about this was basically a question which was asked in previous year paper of NIPER. ये पास में आया हुआ क्वेश्चन है नाइपर के लिए. सेम स्ट्रक्चर्स दे दिए थे एंड पूछा था कि ये कौन सा रिएक्शन है. वहां पे नेम ऑफ रिएक्शन पूछा था, यहाँ पे नेम ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा. यहाँ पे तो रिएजेंट्स दे दिए बॉस, और टफ हो गया. तो बेसिकली जहां पे ये एक एस्टर है OC डबल बॉन्ड OR, वही कन्वर्ट हुआ है आगे, करेक्ट? तो मुझे एक चीज याद आ गया, जहां पे ऐसा एरोमेटिक एस्टर होता है, वो जब ऐसे कन्वर्ट होता है, दैट रिएक्शन वाज बेसिकली फ्राइज रीअरेंजमेंट. मुझे इतना याद आ गया, अभी के लिए इतना याद आया. और मुझे आगे ये याद आ रहा है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में एल्यूमिनियम होता था. देख, जिंक और अमालगमेटेड जिंक तो क्लेमेंसन रिडक्शन में था. रेड फॉस्फोरस तो अपना Hell-Vollard-Zelinsky में था. एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज AlCl3 एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, मैंने अभी तक देखा नहीं किधर. आई थिंक दिस शुड बी द आंसर. फ्राइज रीअरेंजमेंट में यही होगा. लेट्स चेक. यस, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यस, इट वाज फ्राइज रीअरेंजमेंट. यस,
आंसर वाज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. इजी. ऐसे क्वेश्चन पास्ट में आए हैं, प्लीज डोंट निग्लेक्ट देम. देख लो नाइपर का प्रीवियस ईयर पेपर, यू विल एक्चुअली फाइंड दिस क्वेश्चन. बट वहां पे ये पूछा था कि रिएक्शन का नाम क्या था. मैंने इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया कि उसमें रीएजेंट क्या था. रिएक्शन आइडेंटिफाई करोगे तभी तो रीएजेंट बता पाओगे. Going further to the next question, benzene with acetic anhydride in presence of anhydrous aluminium trichloride. Okay, benzene है, acetic anhydride है, anhydrous aluminium trichloride है. बहुत difficult होते जा रहा है यार, कुछ याद नहीं आ रहा. Basically the product is a combination of both. If I'm not wrong, this name reaction has something to do with one of the reactions which we did recently. कौन सा name reaction था? Perfect. Your Friedel-Crafts reaction. You have your benzene ring. बहुत बार देखा है 10th 12th में, which is reacting with acetic anhydride CH3, C double bond O, O, C double bond O, CH3. What happens is this is going to combine, form a acetophenone, which is this. Rest would be a byproduct as acetic acid CH3, C double bond O. इधर जहां पे बाइंड हो रहा है वहां का हाइड्रोजन साथ में आ जाएगा, यू गेट एसिटिक एसिड. इजी था स्ट्रक्चर बनाने का, फिर सोचने का कि क्या बन सकता. दैट्स द वे. RX to ROH, अल्काइल हलाइड से अल्कोहल बनाने का क्या यूज करूं. NaOH यूज करेगा तो NaX जाएगा, KOH यूज करेगा तो KX जाएगा. मेरे को एक चीज याद आ रहा है, अगर ये आंसर हो सकता है, ये दोनों अल्कोहल है. अगर ये आंसर हो सकता है तो ये भी हो सकता है. तो ये दोनों ऑप्शन तो गए. मैं तो सीधा यही मार्क कर रहा हूं, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है. देखते, आई माइट बी रॉन्ग, आई एम करेक्ट. मैंने सिर्फ एक सिंपल लॉजिक किया. बॉस अल्कोहलिक KOH से अल्कोहल बना के क्या मतलब है. दो ऑप्शंस इधर ही चले गए. एरोमेटिक अल्कोहल का कुछ लेना देना ही नहीं है, अल्काइल हलाइड से स्टार्ट हुआ है. तो आंसर वाज सपोज्ड टू बी NaOH. सिंपल. यूज सच सिंपल लॉजिक्स, सारे क्वेश्चंस फास्ट हो जाएंगे. जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन इन डेप्थ. जितना बेटर तरीके से क्वेश्चन एनालाइज करेगा उतना इजी तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट. ऑब्जर्व, इट वाज aqueous, don't go wrong, it was aqueous. Let's go to the next. यहाँ पे अगर अल्कोहलिक लेने जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं आता. क्या अगर अल्काइल हैलाइड NaOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करता तो प्रोडक्ट क्या आता. आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है. यू शुड बी एबल टू आंसर. थिंक 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 थिंक, क्या हो सकता है. व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल प्रोडक्ट. ऑलराइट. तो क्या बोला था तुम लोगों को, इसका आंसर चेक करना था ना कि अगर अल्कोहलिक होगा NaOH KOH तो क्या होगा. सो डिड वी गेट एनी आंसर टू इट. इज द प्रोडक्ट एन अल्कीन. आई एम जस्ट लिविंग अ डाउट. इज द प्रोडक्ट कीन. जब अल्कोहलिक KOH होता है विद अल्काइल हैलाइड, या अगर अल्कोहलिक NaOH होता है, इज द प्रोडक्ट एन अल्कीन. यू विल गेट इट इन योर 12th स्टैंडर्ड बुक. कोई हाई फंडा बुक जाने की जरूरत नहीं है. सारे बेसिक चीजें, एंड यस दे डू कम. सो प्लीज बी रेडी ऑन योर बेसिक्स एज वेल. Going further to the next question, the reaction, the reactants involved in Manish reaction. अच्छा, हाँ वो फॉर्मेल्डिहाइड और डाइमिथाइल अमाइन था. ओके, फॉर्मेल्डिहाइड. तो फॉर्मिक एसिड का तो कुछ लेना देना नहीं था. तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, मतलब वही हो गया डाइमिथाइल अमाइन. फॉर्मेल्डिहाइड, डाइमिथाइल अमाइन. अल्कोहल का क्या करेगा. नहीं, अल्कोहल का कुछ लेना देना ही नहीं था ना. There was no reaction with regards to alcohol, so it should be ammonia. I think it should be C, right? C होना चाहिए ना. Let's check. Am I correct? Yes, I am. So basically this was my reactant acetophenone. My acetophenone was basically reacting with a formaldehyde. Yes, straight away वही याद था मुझे. Manish reaction मतलब मुझे सिर्फ formaldehyde याद था, इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे से फॉर्मेल्डिहाइड वर्ड ढूंढा. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन वे. फॉर्मेल्डिहाइड से मैं यहाँ पे आ गया. फिर मुझे डाइमिथाइल अमाइन याद था, व्हिच इज एक्चुअली एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड. हाँ, अमोनिया तो इन्वॉल्व होगा ही, उसका ही पार्ट है जिसके वजह से वो रिएक्ट होता है. दैट्स हाउ इट्स कोरिलेटेड. दैट्स हाउ यू एलिमिनेट द ऑप्शन. अल्कोहल नहीं है. व्हाई डू आई थिंक इवन अबाउट अल्कोहल. देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ना ही प्रोडक्ट ना ही रिएक्टेंट. एलिमिनेशन मेथड, क्या पार्ट हो सकता है क्या पार्ट नहीं हो सकता. दैट्स योर आंसर. Let's go to the next question.
56. 4 more questions to go. Michael reaction involves what? Michael. Novinazole Michael. Yes, उधर भी active methylene group था. Active methylene group मतलब CH2 which is attached to two electron withdrawing groups. Something like cyanide, something like COOH. Does it have a activated olefinic bond? Yes, yes. Novinazole का product अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम होता था. वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम ही तो इसका रिएक्टेंट था. करेक्ट. तो ये भी था. Relatively acidic hydrogens, yes, there were acidic hydrogens. मान ले if you are confused that relatively acidic hydrogen क्या होता है, is it the answer? At least you are sure ये दोनों आंसर का पार्ट है. वेरी सिंपल, स्ट्रेट अवे मैं ऑल मार्क कर दूंगा, मुझे और कुछ नहीं सोचना. बहुत सिंपल है. अगर ये दो है तो मैं ऑल पे ही जाऊंगा, मैं थोड़ा ऑप्शन भी नहीं देखना. लेट्स चेक, am I correct? Yes, I am correct. Answer was all. This is your basically reaction. Olefinic bond, ये रहा olefinic. Alkene bond. Your malonic ester was your active methylene group, first option. And yes, your hydrogens are basically acidic over here. So you have the word relatively acidic hydrogens. Let's go further. 58th question. Wow. The moment I see lithium and liquid ammonia, मुझे कोई तो नेम रिएक्शन स्ट्राइक होता है. कौन सा नेम रिएक्शन था? लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया. कौन सा था? कौन सा था? कौन सा था? हाँ, कुछ तो बी से चालू होता था. राइट राइट. Was it something like Birch reduction? BIRCH. Was it something like Birch reduction? Yes. तो कुछ तो रिड्यूस होता था उसमें. और यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है. It is a substituted benzene ring. It is basically having a electron withdrawing moiety, right? So Birch reduction में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग moiety के लिए अलग टाइप का प्रोडक्ट आता था, और बर्च रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग moiety के लिए अलग टाइप का प्रोडक्ट आता था. करेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अदर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो अलग प्रोडक्ट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. मुझे जितना याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता था तो अनसैचुरेशन उसी पे रहता था. तो बेसिकली इधर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोडक्ट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड तो चाहिए. आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस सिर्फ ये दो प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड है. इसमें भी है बट इसका अनसैचुरेशन चले जा रहा है, व्हिच डजंट मेक सेंस. बॉन्ड्स हैव टू स्टे. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. ये COH CH3 में तो कन्वर्ट होगा. सो टोल्यूइन. करेक्ट, टोल्यूइन है. दिस कैन नॉट बी द आंसर. बचे ये दो ऑप्शंस. इसमें क्या हो रहा है? अनसैचुरेशन इज स्टेइंग विथ द कार्बोक्सिलिक एसिड. जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड था वो एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही रुक रहा है, while it is a electron withdrawing group. On other grounds, यहाँ पे बेसिकली पिक्चर कुछ अलग है. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहीं पे, बट इट इज नॉट रेस्टिंग ऑन अ डबली बॉन्डेड कार्बन. वो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे नहीं है. अभी आंसर ये दोनों के बीच में. Here is the logic. If you have a electron donating group, yes, this is the answer. We are talking now about Birch reduction. If you have a electron donating group, if you have a electron withdrawing group, your product stands different. So basically my alkoxy group is my electron donating group, EDG. तो यहाँ पे बात की. While my carboxylic acid is my electron withdrawing group. Carboxylic acid होगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा, alkoxy group होगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा. Carboxylic acid is electron withdrawing group. Electron withdrawing groups, when they undergo Birch reduction in presence of lithium and liquid ammonia, their product doesn't include carboxylic acid on doubly bonded carbon. प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड्स वो कार्बन पे नहीं होते हैं जिससे COH बाइंड होता है. प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बन पे नहीं होता है जिससे COH बाइंड होता है. On other grounds, when it is an electron donating group, something like O-methyl, OCH3, तो प्रोडक्ट में भी डबली बॉन्डेड कार्बन होता ही है. ओनली थिंग इज दैट फ्रॉम 3 बॉन्ड्स दे बिकम 2 बॉन्ड्स. सेम चीज यहाँ पे भी तो हो रही है. यहाँ पे भी तो 3 बॉन्ड में से बेसिकली 2 बॉन्ड हो जा रहे हैं. ओनली थिंग इज दैट इट डजंट रेस्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इफ आई से दैट इंस्टेड ऑफ COH अगर यहाँ पे CN होता तो प्रोडक्ट क्या होता? डबल बॉन्ड के पोजीशन क्या होते? अगर यहाँ पे साइनाइड होता तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होता? सेम ही होता. Carboxylic acid is also electron withdrawing and your cyanide group is also electron withdrawing. So it is the same thing. So your product will stay the same in that case. I hope you get the logic. Same में यहाँ पे कोई भी electron donating group ले लो, अंदर double bond का position same रहेगा. It would be opposite to each other and it will rest on the doubly bonded carbon. I hope it's clear.
Let's go to the next second last question. साइक्लिक अल्फा हैलो कीटोन्स, मतलब कुछ तो साइक्लिक है, कुछ तो अल्फा हैलो कीटोन है. मुझे जितना भी याद आ रहा है अल्फा हैलो कीटोन से फेवरस के रीअरेंजमेंट में ही था. फेवरस के रीअरेंजमेंट की कुछ स्पेसिफिक चीज थी, उसमें प्रोडक्ट में से कुछ तो चेंजेस होते थे. If you remember the comparison we did during lecture, pharma students, बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट में बेसिकली अगर रिएक्टेंट में 6 कार्बन होता था तो प्रोडक्ट में 7 कार्बन हो जाता था. आई होप यू रिमेंबर. बट फेवरस के अरेंजमेंट में अगर रिएक्टेंट में 6 कार्बन होता है तो प्रोडक्ट में -1 होता था. रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती थी, 6 कार्बन की रिंग से 5 कार्बन की रिंग बन जाती थी. मुझे इतना याद आ रहा है. लेट्स चेक. पहले तो इसका प्रोडक्ट फेवरस के रीअरेंजमेंट में एस्टर ही होता था. तो ये चारों ऑप्शन में से सिर्फ यही दो ऑप्शन में एस्टर है. तो आंसर या तो बी है या तो सी है. दूसरा चीज मुझे पता है कि इसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती थी, 6 कार्बन से 5 कार्बन का हो जाता था. सो इट शुड बी सी एज द आंसर. लेट्स चेक. आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग. ओह, आई एम राइट. So this is basically my alpha haloketone. This is my keto carbon, C double bond O. फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, ये भी अल्फा कार्बन, वो भी अल्फा कार्बन. यस, अल्कोक्सी ग्रुप रिएक्टिंग. कितना कार्बन है, सॉरी कितना मेंबर सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बाहर चला गया. फ्रॉम अ 6 membered system in the ring, it has become a 5 membered system in the ring. There is decrease in the number of carbon by 1. That's what you remember specifically for Favorus. Again, it is a ester, C double bond O O R. So I'll go with ester with ring contraction. That's how it works. I hope it's easy. Last question for our first question paper coming at the end. Took almost 3 lectures, but I hope organic chemistry name reactions have become easy to a great extent. कुछ तो thought process develop हुआ रहेगा. Let's check one final one. Which base catalyst are used in Perkins reaction? Perkins reaction में कौन सा base catalyst use होता है? Very difficult. Options भी है, timer भी है, कुछ याद नहीं आ रहा. थोड़ा थोड़ा करके शॉर्टलिस्ट करते. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH हो गया, नहीं है मेरे को इंटरेस्ट. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी वही लेवल पे हो गया, NaOH है तो ये KOH है, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है. अभी बचा सोडियम इथॉक्साइड और दूसरा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. आप बोल रहे हो आप बेस कैटालिस्ट यूज कर रहे हो. सोडियम इथॉक्साइड मतलब हो गया अल्कोक्साइड. so sodium ethoxide means it is basically C2H5ONa, correct? sodium ethoxide. and sodium salt of acid मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा. वेरी डिफिकल्ट. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसमें सोडियम इथॉक्साइड था. आंसर शुड बी ए. लेट्स चेक. ओ, आंसर इज बी. कुछ तो रॉन्ग गया, याद नहीं आया. लेट्स चेक. This is my reactant, which was basically aldehyde. This is my acetic anhydride, and acetic anhydride के साथ sodium salt of acid था. I went wrong. Right answer is B, sodium salt of acid. C2H5ONa इधर था वॉल्फ क्वेश्चनर में. I'm sorry, गलती हो गई. Student mind confusing. All right, so that was all through. Thanks for your patient listening. I hope we could make a difference with our thought process, thinking on lines, how to attempt a question and how to approach it. Just एक चीज बोलनी है, don't dream small, always target all India rank 01. अभी तक किसी ने 500 रन, सॉरी किसी ने 500 मार्क्स स्कोर नहीं किए जीपैट में. किसी ने बहुत टाइम तक 200 रन भी स्कोर नहीं किए थे 50 ओवर्स में. किसी ने बहुत टाइम तक 150 रन भी स्कोर नहीं किए थे T20 में. बट ओवर टाइम वो सारे रिकॉर्ड्स टूटे. एक बार नहीं, बार बार टूटे. सचिन ने 200 बनाया, फिर सहवाग ने बनाया. रोहित शर्मा डिड इट थ्राइस. सो व्हाई कांट यू थिंक ऑफ राइटिंग अ रिकॉर्ड ऑफ गेटिंग फर्स्ट 500 ऑन 500? ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ एवरीवन. टेंशन नहीं लेने का, बी बिंदास, थिंक ऑन क्वेश्चन ऑन इजी लाइंस, डेवलप अ थॉट प्रोसेस एंड यू विल गेट द आंसर. If you want to join PharmaLite for live webinar lectures, test series, notes, just reach out onto this particular contact number. You can go on our website. You can check our Instagram page for pharma updates, GK news, which is required for entrances like NIPER. Our Facebook page has frequent MCQ practice. LinkedIn page will help you update about our certificate courses for
Industry Connect, which we are in collaboration with different industry partners. And yes, most importantly, don't forget to subscribe on this channel so that you get posted about all our upcoming sessions. Thank you so much. Stay safe, stay happy. All the best.